Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 21st June. I'm sure children you all are doing good, you all are safe and taking good care of yourselves. Stay home children, do not venture outside, follow all the necessary precautions, follow all the COVID protocols, listen to your parents and stay safe and healthy children. We have started with poem number 2, that is a box of crayons. So here I am before you with another video for this poem. I have already done the recitation part and I have done the explanation also. So before starting today's work, I will once again repeat and revise the poem. इसका मैंने रेसिटेशन किया था, पोएम का मीनिंग क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैंने किया था. ठीक है, तो आज का जो वर्क है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूंगी. चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू व्हाई डू वी रीड पोएम. ठीक है, जैसे लेसन्स पढ़ते हैं तो लेसन पढ़ने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी इम्प्रूव आवर स्पीकिंग स्किल. जब टीचर्स, व्हेन द टीचर्स रीड द लेसन, व्हेन दे डू मॉडल रीडिंग, देन यू लिसन, यू हियर, तो उससे आपकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होती है. देन यू रीड, रीडिंग से इट इम्प्रूव्स योर रीडिंग. ठीक है, देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेज आर देयर, सो यू इम्प्रूव योर ग्रामर, grammatical skills, you improve your speaking skills, writing skills. पोएम पढ़ते हैं, we recite the poem. पोएम के लिए हम recitation word यूज करते हैं. We recite the poem mainly for the appreciation of the language. ठीक है, पोएम हम पढ़ते हैं mainly किसके लिए, लैंग्वेज के appreciation के लिए. In poem many a times you will find that the sentences are not framed in the correct manner. ठीक है, सेंटेंस के बाद यू विल से फुल स्टॉप नहीं है. पोएम में पोएम का बेसिक इंटेंशन होता है टू अप्रिशिएट द जो राइमिंग वर्ड्स उसमें यूज होते हैं. यू विल फाइंड in most of the lines like line first and second or maybe line first and third, second and fourth, rhyming words are there. ठीक है, so we mainly learn the poem for appreciation of the language, to understand the hidden meaning or hidden message. डायरेक्टली पोएम के थ्रू डायरेक्टली कई बार मैसेज नहीं कन्वे होता है, लाइक जैसे लेसन में होता है, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द पोएम देयर इज अ ब्यूटीफुल मैसेज हिडन इन द पोएम. ठीक है, तो जैसे ये अभी हमने पोएम पढ़ा कि अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स. दिस इज नरेटेड बाय अ चाइल्ड. That is why the word I is used. That means the child who had the box of crayon, जिसके पास crayon का box था, that child herself or himself is narrating this poem. And here we can assume that there are two children can be seen in the picture. इस picture में हमें दो बच्चे दिख रहे हैं. One is a boy and one is a girl. ठीक है, तो since the boy, you can see that the boy has a crayon in his hand which is divided into two parts, or we can say that the girl is using the crayon, red crayon है. ठीक है, and the boy is ठीक है, कोई बात नहीं टाइप्स उसका फेस पे जो हैप्पी सा लुक है, and the girl looks to be little sad. ठीक है, तो previous day maybe I told you that the girl had the box of crayon, but now I feel that the boy has the crayon. ठीक है, so maybe the boy is saying that I had a box of crayons. Since उसके पास था, that is why the word had is used. ठीक है, previous lesson में हमने has and have पढ़ा था कि where do we use has and where do we use have. Has and have का past tense है had. ठीक है, तो the boy says कि I had a box of crayons, all shiny, but it is not mentioned here that whether the boy had a box of crayon or the girl. किसके पास crayons था ये यहाँ पे mention नहीं है. It is only the child.
ठीक है, तो वी कैन एज्यूम दैट मे बी द बॉय हैड अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन. सो ही सेज कि आई हैड अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, ऑल शाइनी, स्ट्रेट एंड न्यू. आई लेंट अ फ्रेंड वन क्रेयॉन एंड ऊप्स इट ब्रोक इन टू. ठीक है, उसने कह रहा है कि मेरे पास एक क्रेयॉन का बॉक्स था. तो जब आप भी जब क्रेयॉन्स खरीदते हो, when they are absolutely new, they look so nice, एकदम शाइनी, शाइन करते रहते हैं, ब्राइट होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं. ठीक है, एंड व्हेन यू यूज देम तो थोड़े से डल हो जाते हैं, उनके ऊपर कई बार दूसरे कलर्स लग जाते हैं. सो सिंस द क्रेयॉन्स वर न्यू, तो दे वर ऑल शाइनी, दे वर ऑल ब्राइट एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेट तो होंगे ही. एंड आई लेंट अ फ्रेंड वन क्रेयॉन. लेंट मीन्स टू गिव समवन समथिंग टू यूज. लेंट का मतलब है किसी को उधार देना. Lent, lent is the past tense of lend. Okay, lend is the word. lend का past tense word है, past tense form है lent. तो he says कि मैंने एक friend को यूज करने के लिए दिया and oops it broke into two. वो two parts में break हो गई. oops word के बाद आप देखोगे कि एक exclamation mark है. oops when you express sudden feeling. अचानक से जब हम कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन वी यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, ऊप्स, ओ माय गॉड, इससे कुछ सुना ना, कोई सडनली ऐसे कोई हमने न्यूज सुनी, बहुत थोड़ी स्केरी सी न्यूज है या बहुत सरप्राइजिंग सी कोई न्यूज है, इससे ओ माय गॉड, अरे ऐसे कैसे हो गया, हाउ डिड इट हैपन. तो व्हेन वी सडनली एक्सप्रेस समथिंग, ठीक है, तब वी यूज, इन दैट केस वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. यू आर होल्डिंग समथिंग एंड इट फेल फ्रॉम योर हैंड, हाथ से गिर गया, तो अक्सर हमारे मुंह से ये वर्ड निकलता है, उप्स. ठीक है, तो व्हेन वी सडनली एक्सप्रेस समथिंग, जब हमारी कोई सडन फीलिंग, कोई सडन एक्सप्रेशन होता है, देन वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, सो द चाइल्ड सेज कि मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया था यूज करने के लिए एंड इट ब्रोक इनटू टू. वो टू पार्ट्स में ब्रेक हो गई. सो माय फ्रेंड सेड आई एम सॉरी. ऑब्वियसली जिसको यूज करने के लिए दिया था, उससे अगर वो टूट गई क्रेयॉन, तो द चाइल्ड विल डेफिनेटली से सॉरी. दैट इज अ गुड मैनर कि अगर आप किसी से कोई चीज लेते हो यूज करने के लिए, एंड इफ समथिंग हैपेंस विथ इट, मे बी इट ब्रोक और यू मिसप्लेस्ड इट, गुम हो गई, खराब हो गई, तो वी मस्ट से सॉरी. हमको सॉरी जरूर कहना चाहिए. दैट शोज योर गुड मैनर. यस, यू बोरोड समथिंग फ्रॉम समवन एंड आपसे खराब हो गया, तो यू आर सॉरी, आपको खराब लग रहा है. ओके, तो द चाइल्ड सेड, उसके फ्रेंड ने बोला कि आई एम सॉरी, बट आई सेड इट इज फाइन. जिसको उसने लेंड किया था कलर यूज करने के लिए, दैट चाइल्ड सेड आई एम सॉरी. द चाइल्ड हु इज नरेटिंग द पोएम, जो पोएम को नरेट कर रहा है, जो पोएम को बोल रहा है, दैट चाइल्ड सेज इट इज फाइन, कोई बात नहीं, बिकॉज वी बोथ कैन शेयर. अब हम दोनों इसको शेयर कर सकते हैं. नाउ हाफ इज योर्स एंड हाफ इज माइन. आधा तुम्हारा है एंड आधा मेरा है. नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी दैट दिस पोएम कंटेन्स सच अ ब्यूटिफुल मैसेज. क्या मैसेज है कि व्हेन इफ समथिंग हैपेंस विथ एनीथिंग, जैसे हमने किसी को, इफ वी हैव गिवन समथिंग टू आवर फ्रेंड फॉर यूज, हमने अपने फ्रेंड के साथ कोई चीज शेयर किया है, कोई किसी को यूज करने के लिए दिया है, एंड इफ समथिंग हैपेंस विद दैट, अगर उसके साथ बाय चांस मिसप्लेस हो गया या टूट गया या कुछ हुआ, तो वी शुड नॉट, हो सकता है अंदर से उसको खराब लगा हो कि उसके नए नए क्रेयॉन्स टूट गए, बट द चाइल्ड डिड नॉट शो इट. उसने अपनी इस फीलिंग को शो नहीं किया बिल्कुल भी. बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर आपने किसी से कुछ चीज बोरो किया कुछ यूज करने के लिए, एंड इफ योर फ्रेंड बिकम्स वेरी एंग्री, कि अरे मेरा कलर तोड़ दिया तुमने, मेरी पेंसिल गुम कर दी, तो यू विल फील सो बैड. अब गुम हो गई, टूट गई, बाय मिस्टेक ही हुआ, कोई पर्पसली तो नहीं करता है, तो गलती से या तो आपसे टूट गई या गुम हो गई, तो उसने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो देन यू फील ओके कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं. बट इफ योर फ्रेंड बिकम्स वेरी एंग्री, कि अरे मेरे इतनी एक्सपेंसिव कलर्स थे, उसको तोड़ दिया तुमने, क्या किया, तो देन यू फील सो बैड, बहुत बुरा लगता है ना. तो दैट इज वाई मे बी द चाइल्ड फेल्ट बैड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसको शायद बुरा लगा होगा, बट द चाइल्ड डिड नॉट एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग. ठीक है, whosoever is narrating the poem, whether the boy or the girl, उसने अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया.
ठीक है, शो नहीं किया उसने. So this poem contains a very beautiful message कि अगर ऐसा कुछ होता है तो we share things with our friends. उसने बोला ना कि now we can share. टूट गया कोई बात नहीं, उसने उसमें से कितनी पॉजिटिव बात निकाली कि चलो अब हम इसको शेयर कर सकते हैं, आधा तुम्हारा है आधा मेरा है. ओके, सो वी लर्न द पोएम हम पढ़ते हैं फॉर एप्रिसिएशन ऑफ द लैंग्वेज, फॉर अप्रिशिएटिंग द मैसेज विच इज हिडन इन द पोएम. हर एक पोएम में आप कुछ भी पढ़ोगे तो कोई ना कोई उसके अंदर मैसेज जरूर होगा. ठीक है, देयर विल बी समथिंग, कोई एक मैसेज जरूर उसमें कन्वे होगा. ओके, सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम, सो यू हैव टू लर्न इट. First, you have to write the poem in your notebook. Okay, the way I am writing, you also have to write the poem in your notebook first. तो सबसे पहले आप class work लिखोगे, you will write poem 2 and then you will write name of the poem. Okay, read and recite. That means you have to write the poem in the same manner it is written in the book, but still I am writing on the board. I had a box of crayons. I had a box of crayons, all shiny, shiny, straight, straight and new. I lent a friend one crayon and OOPS and oops, it BROKE, it broke in two. Now whenever we place an exclamation mark के बाद जब हम कोई भी word लिखते हैं तो first it is always capital. Okay, and it broke in two. My friend said I am sorry. My friend said I am sorry, but I said it is fine. क्यों उसने फाइन बोला? बिकॉज ही सेड कि बिकॉज नाउ, अब हम इसको कोई बात नहीं क्योंकि अब हम इसको शेयर कर सकते हैं. हाफ इज योर्स, आधी क्रेयॉन तुम्हारी है और आधी क्रेयॉन मेरी है. ओके, बट आई सेड इट इज फाइन बिकॉज वी both can share. Now half is yours and half is mine. Okay, this is the poem. Now you have to write this poem in your English notebook. Write the poem in your English notebook. Notebook is your copy. ठीक है, notebook का मतलब होता है copy. You have to write this poem in your English notebook. And children, I hope you have done the previous work also.
मैंने एक दिन और आपको कहा था कि लेसन नंबर 2 के जो क्वेश्चन आंसर्स है, अगर मैंने बाय मिस्टेक बोला है बुक में करना है तो बुक में नहीं करना है, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, ठीक है। अगर मैंने बाय चांस बोल दिया बुक में करना है तो बुक में नहीं करना है, दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, कॉपी में, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 2। अगर मैंने गलती से बोला है वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स लिखने के बाद, इफ आई हैव सेड दैट राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर बुक, सो दैट इज बाय मिस्टेक चिल्ड्रन, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, मुझसे भी डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो अगर मैंने बोला है कि राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर बुक, so that is by mistake, you have to write the question answers in your notebook, okay? So you have to write this poem first in your notebook before you write the new words and word meanings of this poem. You have to write it in your notebook, okay? It's a very small poem, so there are very few spell well words and very few word meanings. आप इसको लिख लो। I had a box of crayons, all shiny, straight and new. I lent a friend one crayon and oops, it broke in two. Broke is also the past form of the verb break. ठीक है, ये जो word है broke, this is the past form of the word break. Okay? Break word का past form है. So since the child says that I had, मेरे पास था, that is why the other verbs, that is action words, they are used in past tense only, okay? My friend said, I am sorry. Again, said is the past form of say. My friend said, I am sorry, but I said it is fine because we both can share. Now half is yours and half is mine, okay? ठीक है? So I hope you all have written the poem in your notebook. ये poem आप notebook में लिखोगे, and after writing this, we will be writing the word meaning and spell well words, ठीक है। इस poem के हम word meaning और spell well words लिखेंगे अपनी notebook में। इसको मैं अब erase करने जा रही हूँ, okay? Now next is spell well words. S-P-E-L-L, spell well words, okay? पहले spell well words लिखेंगे and after this we will be writing the word meanings. Since it is a very small poem, there are very few, only 4 spell well words and 4 poems, ठीक है? Now, the first word is C-R-A-Y-O-N-S, crayons. Okay? First word is crayons. First word is crayons. Second word is S-H-I-N-Y, shiny, S-T-R-A-I-G-H-T, straight, shiny means चमकने वाला, ठीक है। अच्छा पहले मैं लिख लूँ, then I will explain. Shiny, straight. Fourth word is L-E-N-T, lent, shiny, straight, lent. And then fifth word is B-R-O-K-E, broke, broke. My friend said, I am sorry, S-O-R-R-Y, sorry, S-H-A-R-E, share, and then half. Children, see the last line. Now half is yours and half is mine. तो yours का मतलब तो है तुम्हारा, ठीक है, and mine मतलब मेरा. Now half is yours and half is mine. Yours and mine. These are all, both these words are pronouns. अभी ग्रामर में जब मैं pronouns पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी. Crayons, shiny मतलब very bright, बहुत चमकने वाली चीज.
स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा. लेंथ, लेंथ मैंने बताया द वर्ड इज LEND, लेंथ. लेंथ का पास्ट फॉर्म है लेंथ. ओके. देन ब्रोक, ब्रोक अगेन इज पास्ट टेंस ऑफ BREAK, ब्रेक. ब्रेक मतलब तोड़ना. ठीक है. तो सिंस द चाइल्ड इज सेइंग कि मेरे पास था, इसीलिए सारे एक्शन वर्ड्स इसमें पास्ट फॉर्म में यूज हुए हैं. राइट, अगेन यू डोंट हैव टू राइट दिस लाइन. जो मैं नीचे लिखती हूँ ये लाइन आपको लिखनी नहीं है. दिस इज फॉर योर इंस्ट्रक्शन. ठीक है. राइट द वर्ड्स इन योर notebook and LEAR and learn the SPELLINGS, learn the spellings. ठीक है. ये वर्ड्स आप अपने नोटबुक में लिखोगे एंड देन लर्न द स्पेलिंग्स. ओके. नाउ राइट दीज वर्ड्स चिल्ड्रन. मैं इधर साइड में आ जा रही हूँ. आप ये वर्ड्स लिखो. फर्स्ट वर्ड इज क्रेयॉन, देन shiny, third is straight, fourth is length, fifth is sorry, fifth is broke, sorry, crayons, shiny, CRAYONS, crayons, SHINY, shiny, STRAIGHT, straight, LENT, length, BROKE, broke, SORRY, sorry, SHARE, share, and HALF, half. Okay, I hope everyone has written. Everyone has written the spell well words. So I'll wait for some more time. You can write these words again. The line which I write at the end is your instruction. आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. This is the instruction for you कि आपको ये करना है. Okay. दिस इज इंस्ट्रक्शन कि आपको अपनी नोटबुक में ये वर्ड्स लिखने हैं. ओके. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन द वर्ड्स नाउ. रब कर दूं मैं. नाउ नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग्स. ओनली 4 word meanings are there. Spell well words now. अगेन वेन यू राइट द वर्ड मीनिंग राइट क्लास वर्क. ठीक है. उसके बाद नॉट नेसेसरी टू राइट द नेम एंड नंबर ऑफ द पोएम. पोएम का नाम लिखने की इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज यू नो दैट यू आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर. ठीक है. तो बिगिनिंग में तो हम चैप्टर का नाम लिखते ही हो. सो अगर अभी आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वर्ड बट दिस यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग एंड डेट जरूर लिखोगे. जिस दिन आप जो वर्क करोगे यू हैव टू राइट द डेट. ओके. नाउ वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वर्ड इज शाइनी. SHINY, शाइनी. शाइनी का मतलब मैंने बताया था समथिंग विच इज वेरी ब्राइट, चमकती हुई. तो शाइनी BRIGHT, ब्राइट. ओके. देन सेकेंड इज STRAIGHT, straight. Straight means not bent, मतलब जो मुड़ा हुआ ना हो. अगेन bent is the past form of the word BEND, bend. Bend मतलब मुड़ा हुआ. ठीक है. ये I have this marker in my hand. It is straight. ठीक है. इफ आई ट्राई टू बेंड इट,
इसको अगर मैं बेंड करने की कोशिश करूंगी तो इट विल डेफिनेटली ब्रेक, ये जरूर टूट जाएगा। जैसे आपके क्रेयॉन्स होते हैं, पेंसिल्स होती हैं, इनको अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो इट विल डेफिनेटली ब्रेक। जैसे आपकी स्केल होती है, स्केल इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, उसको भी अगर ऐसे मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। तो BENT बेंड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड BEND बेंड। ओके, बेंड मतलब मुड़ा हुआ। थर्ड वर्ड इज LENT, लेंथ। लेंथ मीन्स ALLOWED, अलाउड टू यूज। ठीक है, किसी को लेंट करना मतलब आप अपनी चीज किसी को यूज करने के लिए उसको अलाउ कर रहे हो, उसको परमिट कर रहे हो। अलाउड इज ऑल्सो द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड अलाउ। अलाउ करना मतलब परमिट करना, उसको किसी चीज की परमिशन देना। अभी अगर आपके पास अपना सामान नहीं है, इफ यू विश टू यूज योर फ्रेंड्स एनी स्टेशनरी और बुक और एनीथिंग, फर्स्ट यू मस्ट आस्क योर फ्रेंड। ठीक है ना, जो प्रॉपर वे है कि आप पहले अपने फ्रेंड से परमिशन लो, उससे पूछो, एंड इफ योर फ्रेंड अलाउज देन ओनली यू डू इट। सो लेंट का मतलब होता है किसी को देना, किसी को अलाउ करना अपनी कोई चीज यूज करने के लिए। वैसे लेंड वर्ड का मीनिंग इज उधार। ठीक है, किसी को हम जैसे मनी लेंड करते हैं, पैसे उधार देते हैं। ठीक है, तो लेंड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ पैसे उधार दो। So lend means that means when you are lending money to someone, you are allowing that person to use your money. ठीक है, तो lend का मतलब है allowed to use, मतलब the child allowed his or her friend to use the crayon. Okay, so that is lend. And fourth word is share. SHARE, share. Share का meaning है enjoy, ENJOY, enjoy something, with others. ठीक है, the child said कि because we both can share, तो शेयर का मतलब है किसी के साथ बांटना। तो जब आप कोई चीज किसी के साथ शेयर करते हो तो यू डू इट ऑन योर ओन, यू डू इट विलिंगली, नोबडी फोर्सेज यू। आपको अपनी चीज शेयर करने के लिए कोई फोर्स नहीं करता है, कोई जबरदस्ती नहीं करता है कि यू शेयर योर थिंग विथ मी, कि आप मेरे साथ अपना शेयर योर क्रेयॉन्स विथ मी। जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। हम जब किसी के साथ शेयर करते, इफ द चाइल्ड इज शेयरिंग हिज और हर क्रेयॉन्स विथ हिज और हर फ्रेंड, दैट मीन्स द चाइल्ड इज डूइंग इट विलिंगली। वो अपने फ्रेंड के साथ जो क्रेयॉन्स शेयर कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, उसको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। When we share something with our friend or anyone, we enjoy it. हम किसी के साथ उस काम को करना एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो शेयर का मतलब है कि एंजॉय समथिंग विथ अदर्स। शेयर को अगर एक वर्ड में हिंदी में बोलना है तो दैट इज बांटना। शेयर करना मतलब जैसे कोई खाने की चीज है, ओके चिल्ड्रन शेयर इट अमंग योरसेल्फ। ठीक है, केक है, किसी का बर्थडे, शेयर इट अमंग योरसेल्फ, मतलब आपस में सब इसको शेयर कर लो, मतलब सब इसको बांट लो। तो शेयर वर्ड का जो एक हिंदी मीनिंग है दैट इज बांटना। ठीक है, शेयर हम बांटते कब है, जब आपकी बर्थडे पे केक आता है, केक कट करते हो, देन यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सो यू डेफिनेटली गेट द एंजॉयमेंट। हमको अच्छा लगता है, हम अपने आप पूरा केक तो हम अकेले नहीं खाएंगे, तो व्हेन वी कट इट उसको हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो वी एंजॉय इट, हमें अच्छा लगता है। तो शेयर का मतलब है एंजॉय समथिंग विथ अदर्स। नाउ चिल्ड्रन राइट the word meanings, MEANINGS. Write the word meanings in your notebook. Notebook is obviously English का period है, English का video है, that means in your English notebook only. Write the word meanings in your notebook and memorize. इसको याद भी करना है, ठीक है, MEMORIZE and memorize. Write the word meanings in your notebook and memorize. Word meanings को अपनी notebook में लिख करके उसको याद करोगे। ओके, सो मैं साइड में आ जा रही हूँ, आप word meanings लिखो। and today I will not proceed. ठीक है, today I will stop here only. In the next class we will be starting with the exercises. So write the words in your English notebook.
एंड आफ्टर राइटिंग देम यू हैव टू मेमोराइज ऑल्सो. ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो उसे याद भी तो रहना जरूरी है ना. पढ़ते गए लिखते गए और सब भूल गए, देन देयर इज नो पॉइंट. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव written it. Written the word meanings. Only 4 words are there. Shiny means, these words you don't have to write. Shiny means bright. Straight means something which is not bent. Lent means allowed to use. And share is enjoy something with others. Okay children. So today I will end the class here only. And in case of any doubt कि ये क्या letter मैंने लिखा है, if किसी को थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो चिल्ड्रन प्लीज सी योर बुक. ऑल द वर्ड्स जो मैंने स्पेल वेल वर्ड्स लिखवाए हैं, द वर्ड मीनिंग्स, एवरीथिंग इज देयर इन द बुक. सो एनी डाउट यू हैव, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज कंसल्ट योर बुक. गलत स्पेलिंग नहीं लिखना. ओके, गलत लिखोगे तो गलत लर्न भी करोगे. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आई विल एंड द क्लास हियर ओनली. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.